हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्थ टॉपिक, दैट इज सेंटर एंड स्टेट रिलेशन. अंडर द सेंटर एंड स्टेट रिलेशन वी विल लर्न सो मेनी थिंग्स एंड वी विल रिवाइज आवर पॉलिटी ऑल्सो. कुछ करंट अफेयर्स हैं, बट इसमें कुछ टर्म्स बहुत फैक्ट दिए गए हैं जिसके थ्रू हम अपने करंट पॉलिटी सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज कर लेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. पहला टॉपिक हमें दिया गया है फिस्कल फेडरलिज्म. पहले ये न्यूज़ में क्यों था वो देखेंगे, और उसके साथ ही हम देखेंगे कि फिस्कल फेडरलिज्म होता क्या है. देखिए, न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि कुछ स्टेट्स जो हैं उन्होंने वो मूव की थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ ओवर द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ फाइनेंस. ठीक है, फाइनेंस शेयरिंग रिसोर्सेज जो था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गया था, तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ मूव की थी, सुप्रीम कोर्ट के पास मूव करी थी. इशू इंक्लूड किया गया था डिले इन जीएसटी कंपनसेशन, ग्रांट्स एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को कवर किया गया था. इस इशू में क्या क्या कवर किया गया था? इस इशू में कवर किया गया था डिले इन जीएसटी कंपनसेशन, ग्रांट्स एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसमें फाइनेंशियल इशू आ रही थी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को उससे रिलेटेड डिले हो रही थी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज से रिलेटेड दिक्कतें आ रही थी. उसकी वजह से स्टेट्स जो है वो मूव की थी कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास. इसलिए दोनों का रिलेशन, स्टेट एंड सेंटर का जो रिलेशन है वो न्यूज़ में था. ठीक है, चलिए. इसमें फिस्कल फेडरलिज्म कहाँ से आ गई बात, तो इस चीज को हम समझेंगे. बेसिकली ये होता क्या है फिस्कल फेडरलिज्म? इट रेफर्स टू हाउ फेडरल, state, and local government share funding and administrative responsibility within India's federal system. Means, basically, it refers to the finance division of power and responsibility among the union, state, and local government in a federal system. There is some constitutional provision for this federalism arrangement. Okay, so it's mentioned in first seventh schedule. Under the seventh schedule, there is a article 246. So under the article 246, there is a three list. One is union list, second is state list, and third one is concurrent list. Under the union list, you will get the under the union list income tax, incorporated tax, and custom duties associated. Under the state list, land revenue and exercise on liquor. Under the concurrent list, GST, shared between center and state. Okay, so this is all about the seventh schedule. If we are talking about the revenue distribution, so under the revenue distribution, there is a three article. One is Article 269. Okay. So Article 269 said taxes levied by the center but collected and assigned to the state. Just remember this thing because you will get the question, and even the UPSC has asked the question based on this topic. For example, taxes on interstate trade. Okay. If we are talking about Article 269A, so GST revenue sharing as per GST Council recommendations. And Article 270 is talking about taxes collected by the centers but share with the states. For example, income tax or GST. Clear? So there is some devolution of resources or basis of devolution, or means there is two types of devolution. One devolution is called the vertical devolution, and second devolution is called the horizontal devolution. So under the vertical devolution, there is 41% of the divisible tax pool goes to state, and it recommended by the 15th Finance Commission. Okay. Under the horizontal devolution refers to distribution among the state from share allocated to the state basis on the various criteria. And this criteria is mentioned under the recommendation of the 15th Finance Commission. Okay. So what is the criteria? Criteria is income tax distance is 45%. That is poorer state get more. Okay. Second is
Population based on the 2011 data. So it goes 15% based on reward state with the higher population. Second criteria is demographic performance. Demographic performance is 12.5% based on the encourages better population control. Next is forest and ecology. Forest and ecology based is given 10% based on promotes the conservation, and the tax and fiscal efforts, that is 2.5%. So based on the incentives tax collection. Okay. There is a few more keywords is here. Let's understand what is it. So grant in ad. It's come under the Article 275 and it's give to needy state for a specific schemes. Okay. There is another term is borrowing power. What is the borrowing power? So borrowing power mentioned under Article 292 and 293. Article 292 said center can borrow from domestic and foreign resources. Same Article 293 say state can borrow only within India. So with the restriction if indebted to center. There is a one more keyword is here, that is the Finance Commission. It's mentioned under the Article 280 and it says it determined tax sharing formula between the state and union. Clear? Now move to the next. There is some challenges in fiscal federalism. So what is the challenges in fiscal federalism? Let's see. The challenges is, or we can say the status, because in the status we have seen some challenges of the fiscal federalism. First is declining tax devolution. So from 42% in 14th Finance Commission to 41% in 15th Finance Commission. There is some delay in GST compensation, means payment to state. Third is centrally sponsored scheme with 50-50 funding burden on state. And last, that is rising state debt, means debt to GDP ratio is 27.5% in 2023. So this is the issue is going on. This is the status of the financial things. That's why this dispute is happened between the state and center and it goes to the Supreme Court. Clear? Few more data is given here through the diagram. So let's see. There is a source of state revenue, that is tax of income. Second is non-tax revenue, and third one is grant from the union government, right? So ग्रांट आप ऐसे भी समझ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपके घर में शादी है और आपको कुछ पैसों की जरूरत है. सो एज अ गिफ्ट मैंने एक लिफाफा दिया जिसमें मैंने आपको 3-4 करोड़ रुपए दे दिए हैं और फिर मैं वो देकर भूल गई, मुझे आपसे वो नहीं चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड द ग्रांट्स. ओके. ग्रांट. ओके. टैक्स रेवेन्यू, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू. सो इसके अंदर आ गया टैक्सेस ऑन इनकम एंड टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन. इफ वी से टैक्स डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर, सो टैक्स ऑन द कमोडिटी एंड सर्विसेज, राइट. नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें, सो वी कैन से दैट डिविडेंड एंड द प्रॉफिट फ्रॉम द PSC and fee for the administrative services. It's come under the non-tax revenue. What is the grants from the union government? One is disaster relief grants, grant for the local bodies, and revenue deficit grants is there. ओके. सो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़े हैं, देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस पे किस तरीके के आ रखे हैं. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका मेंस में पूछा गया था. ओके. क्वेश्चन था, जस्ट हाँ, क्वेश्चन था, द स्ट्रेंथ एंड द सस्टेंसेस ऑफ द लोकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया have shifted from the formative phase of functionaries and fund to the contemporary stage of the functionality. Elucidate, right? So 2020 में इससे क्वेश्चन आ रखे हैं. 2019 में भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे. The role of the finance commission is to ensure a balance between the tax devolution and the fiscal prudence. So discuss. 2018 में भी आ रखे हैं क्वेश्चन एंड 2022 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे. सो इस ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं, राइट. सो ओके, प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इस पे आया रखे हैं.
पहला क्वेश्चन है जो 2022 में आया है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जीएसटी। और ऑप्शन है इसका, ऑप्शन बेस्ड ऑन जीएसटी structure, revenue, sharing, and etc. So regarding the GST, which one is the correct? Structure, revenue sharing. Okay. GST structure, revenue sharing. Clear? So this is the prelims question. Let's move to the next topic. Next topic है हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में अगर हम पढ़े तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की अगर हम बात करें तो न्यूज में ये क्यों है, पहले ये समझेंगे। बिहार और आंध्र प्रदेश ने डिमांड किया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। क्यों? टू रिसीव द एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इसलिए बिहार एंड आंध्र प्रदेश ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड की है, सो दैट कि दे विल गेट द और दे विल रिसीव एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सो अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। ऐसे अभी भी समझ आ चुका है हमें कि इन्हें एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, इसलिए इन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांगा है। बट फिर भी चलिए डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? According to the definition, a special category status is classification given by center to assist in development of those state that face the geographical and socio-economic disadvantage. Means a classification given by the central government to assist economically and geographically disadvantaged state. ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था? सो फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1969 बेस्ड ऑन द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। ओके, सो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन के बेसिस पे 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को। फर्स्ट स्टेट टू गेट द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, Assam and Nagaland. So they were granted special category status. Okay. Later added Himachal Pradesh, सिक्किम, त्रिपुरा एटसेट्रा। सो फंडिंग कैसे हुई थी? सो फंडिंग ग्रांट्स किया गया था। ग्रांट्स यूज्ड टू बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन द गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। ओके, जो फंडिंग हुई थी वो फंडिंग ग्रांट्स की गई थी, यूज्ड टू बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन द गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। याद रखिएगा। सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? राइट, क्राइटेरिया फॉर द स्पेशल कैटेगरी और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो स्टेट मस्ट हैव द हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन। राइट, state must have a hilly and difficult terrain. Second, low population density and tribal population. Third, strategic location like bordering neighboring countries से होनी चाहिए। Fourth is economic and infrastructural backwardness. And last, non-viable nature of the state finance. Non-viable nature of the state finance. Clear? So this is all about, but क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कुछ कीवर्ड्स? यस, सम कीवर्ड्स इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। चलिए देखते हैं कहाँ किस में मेंशन किया गया। तो अगर हम देखें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, बट स्पेशल प्रोविजन के थ्रू फॉर द स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट एग्जिस्ट्स अंडर आर्टिकल 371। So special under grants under Article 371A to 371H and 371J में भी ये किया गया, राइट। बट हुआ क्या अंडर आर्टिकल 82 में? क्या हुआ चलिए बताती हूँ। सो एंड कर दिया गया 14th फाइनेंस कमीशन 2015 में, इसको फिनिश कर दिया गया। एंड ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस 14th फाइनेंस कमीशन में क्या हुआ था? 14th फाइनेंस कमीशन abolish the special category status with replacing it with the higher devolution of tax revenue like 41% share to state. So existing special category status जो है वो like नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट को मिला है, still get special funding but not under the special category state. सो करंट डिमांड जो है वो किसकी है? वो है आंध्र प्रदेश और बिहार की। इसमें डिमांड किया गया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का एज अ कंपनसेशन फॉर द रेवेन्यू लॉस आफ्टर द तेलंगाना बाइफर्केशन जो 2014 में हुआ है।
इसके साथ ही बिहार ने भी डिमांड किया है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, साइटिंग पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट एंड बैकवर्डनेस के लिए। इसके साथ कुछ चैलेंजेस एंड अल्टरनेटिव है जो सेंटर देख रही है। सेंटर देख का कहना है या देखना है कि देर इज नो न्यू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ड्यू टू द फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड टैक्स डिवोल्यूशन रिफॉर्म। एंड अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, सो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज बना सकते हैं फॉर द बैकवर्ड्स स्टेट इंस्टेड ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। क्लियर। सो ये थे इसके कुछ सॉल्यूशन। हम लोग देखते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। सो हमारे एग्जाम के लिए ये जो इंपॉर्टेंट है इसके कुछ क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं, और मेंस में। सो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो सॉरी मेंस की बात पहले कर लेते हैं, देखते हैं। मेंस में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस हाउ फार फाइनेंशियल रिवोल्यूशन हैज हेल्प द स्टेट इन रिड्यूसिंग देयर डिपेंडेंसी ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा है द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज नो लॉन्गर रिलीवेंट आफ्टर द 14th फाइनेंस कमीशन। अभी मैंने आपको बताया है। सो डू यू एग्री, जस्टिफाई। राइट। तो इसको हम लोग इसके प्रो एंड कॉन्स बता के इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज देयर इज अ टू स्टेटमेंट। ओके, वन इज द वेटेज ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस states in devolution of taxes has increased under the 14th फाइनेंस कमीशन। इंक्रीज नहीं किया गया था, है ना। क्या किया गया था, इसको रिमूव कर दिया गया था। द 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट फॉर ऑल स्टेट। नहीं, 14th फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को कंप्लीटली बंद कर दिया था। राइट। सो नाइदर वन नॉट टू इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या किया था, 14th का एबॉलिश कर दिया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को, एंड रिकमेंड द हायर टैक्स डिवोल्यूशन इंस्टेड ऑफ द स्पेशल ग्रांट। रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट वे आर ओनली गिवन टू सम स्टेट, नॉट ऑल। ठीक है। इसी तरह 2017 में भी कोई क्वेश्चन किया गया था, दैट इज विथ रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। इट हैज कॉर्पस ऑफ 4 लाख करोड़ एट प्रेजेंट। ऐसा कुछ नहीं है, right? Because it is not an organ of the Niti Aayog, but a fund created by the government of India, and it is not a 4 crore, it is a 40,000 crore. Clear? 2015 में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, that is which of the following statement correct regarding 14th Finance Commission? So it recommends the increase in share of the state and central divisional pool from 32% to 42%. Yes. And it has recommended the distribution of grant to state for the local body using 2011 census of the figure. Yes, so both are correct है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 2013 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। इन इंडिया द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड वंस इन अ 5 ईयर। हमेशा याद रखिएगा। और ये आता है आपका अंडर आर्टिकल 20। ठीक है। सो अंडर आर्टिकल 20, sorry, under article 280, not 20. I'm really sorry about this mistake. This is article 280. Under article 280, the finance commission is constituted every 5 years to recommend the tax devolution and grant in aid. इसी तरीके से 2010 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज इन इंडिया हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। कौन करता है, सो सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिसर, स्टैटिकल ऑफिसर इसको कहते हैं। ठीक है। डिटेल अगर देखो तो नाउ दिस इज मर्ज इन एनएसओ अंडर द एमओएसपीआई मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल इनकम एस्टिमेट। ठीक है। सो हम क्या की टेक अवे ले जा सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि 14th फाइनेंस कमीशन और स्पेशल स्टेटस जो है इसमें मेजर फोकस किया गया है डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड ग्रांट पे। साथ ही फाइनेंस कमीशन जो है फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन ऑन इट्स रोल एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पे पूछा गया है। ओके। सो यहाँ आप समझ सकते हो कि 14th फाइनेंस कमीशन पे जो है और स्पेशल स्टेटस के टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेजर फोकस किया गया है डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड ग्रांट पे क्वेश्चन बने हैं। इवन फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो इसके रोल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो NIIF जो अभी मर्ज हो गया है, राइट, सॉरी CSO मर्ज हो गया है।
सो और टैक्सेशन, ग्रांट टू लोकल बॉडी, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द सिक्स्थ शेड्यूल, राइट, ये रहा। सो जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों न्यूज़ में था वो भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली यहाँ क्या कह रहा है कि देयर इज एन इंक्रीज डिमांड ऑफ इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इट मीन्स कि देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड टू इंक्लूड लद्दाख इन द सिक्स शेड्यूल टू प्रोटेक्ट इट्स कल्चरल आइडेंटिटी, लैंड एंड रिसोर्सेस। ठीक है, सो इसलिए ये सिक्स इंक्लूजन में आ रहा है। सो है क्या सिक्स शेड्यूल, पहले ऐसे समझो आप। सिक्स शेड्यूल बोला गया है, इट्स कम अंडर आर्टिकल 244 अंडर क्लास 2 फ्रॉम द बरदोलाई कमिटी रिकमेंडेशन। इट मीन्स कि ये अनाउंस किया गया था आर्टिकल 244 क्लास 2 में। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल इन अ सर्टेन ट्राइबल एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। Basically, it is based on the Bardoloi Committee recommendation set up by the Constituent Assembly. Okay, so sixth schedule में under this it result किसका result है, this Bardoloi Committee, and it's empowered to governor to create two things. One is the autonomous district council and autonomous regional council in the sixth schedule area state. ठीक है, so under the ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर इट्स कंसिस्ट नॉट मोर देन 30 मेंबर्स, 4 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर होते हैं एंड 26 इलेक्टेड होते हैं। और ये क्या काम करता है, एट प्रेजेंट देयर इज अ 10 सच एडीसी इन 4 स्टेट। और उसी तरह हम अगर ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल की बात करें तो ये कवर करता है स्पेसिफिक ट्राइब विद इन अ रीजन फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। तो sorry, this ADC and ARC have a power to make a law on subject like forest management, agriculture, inheritance, marriages, social custom, etc. Even they also have the power to collect land revenue, impose taxes, regulate trading, collect royalties from the mineral extraction, etc. ठीक है, कुछ पैरामीटर्स यहाँ दिए गए हैं और डिफरेंसेस बताए गए हैं सिक्स शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल में। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, आप इनके एक्शन से समझ सकते हो। जैसे सिक्स शेड्यूल अगर एक्शन में है तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मेघालय काशी हिल में एडीसी होता है, फॉर एग्जाम्पल इट प्रोटेक्ट्स लैंड ऑनरशिप फॉर ट्राइबल। इसी तरीके से बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो असम में है, इट्स मैनेज इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। एंड थर्ड इज द डिमांड फॉर लद्दाख इंक्लूजन। ओके, अगर हम कुछ डिफरेंसेस देखें फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में, तो अगर हम एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पे देखेंगे तो एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पे फिफ्थ शेड्यूल में ऑल इंडिया स्टेट विथ शेड्यूल एरिया मेनली सेंटर एंड वेस्टर्न इंडिया ये सभी आएंगे। और अगर हम सिक्स शेड्यूल की बात करें तो इसमें ओनली नॉर्थ स्टेट, फॉर एग्जांपल असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ATMM, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी। अगर हम देखें तो फिफ्थ शेड्यूल में देर इज नो प्रोविजन ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। एंड सिक्स शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों प्रोवाइड होता है, ADC एंड ADRC विद द लेजिस्लेटिव एंड रेवेन्यू पावर। ठीक है, अगर हम पावर की बात करें तो वही दोनों में पावर बात होता है। बट अगर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की अगर हम बात करें तो आप इसमें प्रिसाइडिंग सॉरी इसमें प्रेसिडेंट गवर्नर वाया द गवर्नर एंड गवर्नर हैज डायरेक्ट पावर ओवर इन सिक्स शेड्यूल। और अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो फिफ्थ शेड्यूल में जो स्टेट आते हैं वो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और सिक्स शेड्यूल में जो स्टेट आते हैं वो अगेन ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो आ रखे हैं ऑलरेडी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज रिलेटेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर ट्राइबल एरिया इन द फोर नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, करेक्ट है, ATMM।
The governor is empowered to establish the autonomous district council in this area. Yes, correct. The सिक्स शेड्यूल अप्लाई बाय द ट्राइबल एरिया इन ऑल नॉर्थ ईस्ट, नहीं केवल चार ही है, ATMM है ना, वो याद रखना है हमने। 21 में भी इससे सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सिक्स शेड्यूल डील विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ट्राइबल एरिया स्टेट आसाम मेघालय त्रिपुरा। वहाँ फोर नॉर्थ ईस्ट स्टेट लिखा है और यहाँ फोर्थ स्टेट को मेंशन कर दिया गया है। सो डेफिनेटली इट इज अ करेक्ट, राइट। एंड सेकेंड इज गवर्नर हैज द पावर टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द जुरिडिक्शन ऑफ ADC, डेफिनेटली। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन 2017 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2017 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके इसी तरीके से हम 2017 में जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी देख सकते हैं। इसमें बेसिकली प्रोविजन इन द फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड इन ऑर्डर टू, बेसिकली दोनों ही चीजों को बनाया गया था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, ये भी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्प्लाइड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नेंस। सो पहला पूछा गया है सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, द रूल ऑफ लॉ, द ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। तो ये सारे के सारे ही इसमें करेक्ट होंगे। ठीक है, मेंस के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हो। जीएस पेपर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 2021 में भी आए हैं, 20 में भी है, 19 में भी है, 18 में भी है और 16 में भी पूछे गए हैं, राइट। तो ये आपके मेंस के क्वेश्चन है जिसे आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही इफ यू नीड एनी हेल्प तो हमारी मेंटरिंग टीम है जो आपको मदद कर सकती है मेंस आंसर राइटिंग में, राइट। चलिए, इससे हम क्या सीख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखा जाए तो प्रीलिम्स में हम बेसिकली फोकस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 244 जो आता है, एंड द पावर ऑफ द ADC स्टेट कवर अंडर द सिक्स शेड्यूल एंड द गवर्निंग एस्पेक्ट, राइट। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में बेसिकली कंपैरिजन पूछा गया है फिफ्थ शेड्यूल में, रोल ऑफ द ADC, गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड द ट्राइबल आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन, राइट। तो ये है मेंस का फोकस टॉपिक, इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आंसर को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूज स्टेट। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूज स्टेट। क्यों ये न्यूज में था, क्योंकि 2 जून 2020। ओके, सो हम न्यू टॉपिक देख रहे हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट। क्यों न्यूज में था पहले ये देखेंगे, फिर हम समझेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, सो न्यूज में इसलिए था क्योंकि 2 जून 2014 को मार्क किया गया था 10 years सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द तेलंगाना जो 2014 में बना है ना, विच वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। सो तेलंगाना स्टेट का 10 years मार्क किया गया है, इस वजह से ये न्यूज में था। बट नाउ द थिंग्स इज व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट। सो अगर हम फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट बात करें तो हमें आर्टिकल 3 की याद आनी चाहिए, राइट। सो अंडर द आर्टिकल 3 इट सेज और इट्स गिवन द प्रोविजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड alteration of the area boundary or name of existing state as per this. What is this? First is the पार्लियामेंट हैज पावर टू फॉर्म अ स्टेट। ये सारी बातें अंडर आर्टिकल 3 के अंदर ही मेंशन होंगी। ठीक है, सो पार्लियामेंट हैज द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, uniting or two or more state part of a state or merging a territory with the state. Clear? Second, presidential recommendation is also there under Article 3. So the president must recommend the bill before it is introduced in the parliament. Same consultation with the state legislature. So under the consultation with the state legislature, so state opinion is sought, but parliament is not bound by it. For example, in the case of the Telangana, Andhra Pradesh opposed the opposed the by so Andhra Pradesh opposed the bifurcation, but Parliament still passed the law. Okay.
तो व्हाट इज द पार्लियामेंट रोल? इट्स अगर हम पार्लियामेंट रोल की बात करें तो इट्स क्रिएट अ न्यू स्टेट थ्रू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर, मीन्स सिंपल मेजोरिटी। फॉर्मेशन अगर न्यू डिस्ट्रिक्ट हो तो अगर फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट होता है, सो स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर टू क्रिएट अ न्यू डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर टू क्रिएट अ न्यू डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट के क्या क्या क्राइटेरिया होंगे? तो पहला तो स्टेट गवर्नमेंट कैन क्रिएट, मर्ज एंड अल्टर द डिस्ट्रिक्ट थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और अ लेजिस्लेचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Assam created a Bajali district in 2020. Okay, and Maharashtra created the Palghar district in 2014. So these are the example for formation of the new district. Okay, कुछ की प्रोविजन भी है की कमिटी की, वो हम देख सकते हैं, है ना। जैसे एस्केदर कमेटी, स्टेट रिकॉग्नाइजिंग सम कमीशन एंड कमिटी रिगार्डिंग दैट। तो अगर हम कमीशन और की बात करें और कमिटी और उसके रिकमेंडेशन की, तो हम देख सकते हैं एस्केधर कमीशन जो है वो 1948 में बना था ये कमीशन। इन्होंने अपोज किया था इन्होंने अपोज किया था लिंग्विस्टिक स्टेट को। ठीक है, इट्स रिकमेंडेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस। ओके, इसी तरीके से अगर हम जेपीवी कमेटी को देखें तो इट्स आफ्टर द नेम ऑफ मेंबर लाइक जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ता भाई सीतारामन्या जी। सो इन्होंने रिजेक्ट किया था लिंग्विस्टिक बेसिस, सजेस्टेड द रिकॉग्नाइजेशन बेस्ड ऑन द नेशनल यूनिटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी। इसी तरीके से फजी अली खान कमीशन देखे जो 1953 में हुआ था क्रिएट, तो इसमें भी यही कहा गया था कि लिंग इट सजेस्टेड फोर फैक्टर फॉर द रिकॉग्नाइजेशन: फर्स्ट, नेशनल यूनिटी सिक्योरिटी; सेकंड, लिंग्विस्टिक एंड कल्चर होमोजिनिटी; थर्ड, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी; एंड फोर्थ इज अ पीपल वेलफेयर। It's also recommended 14th state and 6 UTs implemented by the 7th Constitutional Amendment Act 1956. राइट, सो ये था। अगर मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस के कुछ न्यू स्टेट के एग्जांपल दूं, तो 1953 में अगर आपको याद हो, स्टेट आंध्र प्रदेश से एक मद्रास स्टेट से फिर आंध्र प्रदेश हो गया था, राइट। ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन 1953 फ्रॉम विच स्टेट? तो मद्रास स्टेट से क्या बन गया था? आंध्र प्रदेश। इसी तरह से बॉम्बे स्टेट से निकल के आया था गुजरात एंड महाराष्ट्र इन द ईयर ऑफ 1960। ओके, ये कुछ लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ बस आप देख सकते हो इस चीज को जो मैं बोल रही हूँ। देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप अपने मेंस में यूज कर सकते हो। जैसे कि बॉम्बे स्टेट से 1960 में क्या निकल कर आया? गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, इसी तरीके से असम से निकल कर आया है 1963 में नागालैंड। पंजाब से हरियाणा, अगेन पंजाब से ही हिमाचल प्रदेश इन 1966, 1971। 75 में सिक्किम निकल कर आया है, मतलब 75 में सिक्किम पार्ट बन गया था इंडिया का, राइट, बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम असम में आगे, असम से आए हैं। 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकलकर बन गया था। सो इस तरीके से आप देखो न्यू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में। इसी तरीके से बिहार 2000 में बिहार से निकलकर झारखंड बन गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हम सभी जानते हैं जो 10 साल अभी पूरे हुए हैं, इसलिए ये न्यूज में था। तो तेलंगाना क्रिएट हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है जो आप अपने मेंस में यूज करके अपने आंसर को इनहांस कर सकते हो। प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन देख लिया जाए तो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। इट्स गिवन द रेफरेंस टू इन Constitution of India, and there is a two statement. The Constitution of India defined its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental right, and democracy. The Constitution of India provides the judicial review to safeguard the citizen liberties to preserve the ideals on which the Constitution is based. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। इसी तरीके से 2021 में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसके साथ ही अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में भी, 2021 में भी, 19 में भी, 16 में भी। एक पैटर्न आप देखो, बीच में कुछ ईयर छोड़ दिए गए हैं, राइट।
1 ईयर 2 ईयर के गैप में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, 24 में नहीं आया है, इट मीन्स 25 में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो बी प्रिपेयर विद दिस टॉपिक। कैसे कैसे हम क्या पढ़े और क्या समझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। प्रीलिम्स के लिए हमें फोकस करना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 3 को, प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन को एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कमीशन को। साथ ही मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मेन फोकस की पॉइंट जो है वो है रिकॉग्नाइजेशन इम्पैक्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉलर स्टेट एंड फेडरलिज्म इशू। तो हमें इन्हीं सारे टॉपिक पे ज्यादा फोकस करके अपनी तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल मीट टुमारो। टुमारो जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज जुडिशियरी। थैंक यू।